Hello everyone, here I am Jyoti Katre, Assistant Professor in Mechanical Department at Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, accredited with NAC by A plus grade. लास्ट वीडियो में हमने देखा था that is general layout of hydroelectric power plant, and today in this video I am going to cover a topic that is classification of turbine. Okay, so in this video, I discuss each and every type of turbine. Turbines are classified according to several consideration as indicated below. First is based on working principle, or basically we can say depends upon type of energy at inlet. Okay, as we know, according to Bernoulli's theorem, there are three types of energies are working. The flow of water, that is potential, kinetic and pressure energy. Depends upon this type of energy or based on working principle, the turbines are divided into two types. The first is impulse turbine and second is reaction turbine. So what is impulse turbine? See here, if at the inlet of the turbine only kinetic energy is available, then it is known as impulse turbine. Okay, and one example for impulse turbine is Pelton wheel turbine. And second is a reaction turbine. What is meant by the reaction turbine? If at the inlet of the turbine water possesses kinetic energy as well as pressure energy, then is known as reaction turbine. The example for reaction turbine is Francis turbine and Kaplan turbine. Okay, now see the class here, the difference between two turbines, that is impulse turbine and reaction turbine. This flow chart shows the examples of impulse turbine and reaction turbine. First of all, I am telling you the difference between impulse and reaction turbine. What is in impulse turbine? What is going on? The kinetic energy of water is utilized to the kinetic energy of water is utilized to do the work. The entire available energy is converted into kinetic energy. Okay, and the in reaction turbine, the energy not totally converted from one form of another at the inlet end. The potential energy is main type of energy used in turbine. Okay, the water enter the turbine inlet with the more potential energy and less kinetic energy. Okay, इट मीन्स इम्पल्स टर्बाइन में क्या हो रहा है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ओनली काइनेटिक एनर्जी ही यूज हो रही है, एंड रिएक्शन टर्बाइन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो प्रेशर एनर्जी यूज हो रही है. ओके, इन इम्पल्स टर्बाइन द जेट ऑफ वाटर इम्पिंग्स ऑन द bucket with kinetic energy, and in reaction turbine the water passes over the moving vanes when with potential or pressure energy. Okay, and in impulse turbine the pressure of water is uniform throughout and passes through the wheel at atmospheric pressure, and in reaction turbine the pressure of water is not uniform throughout but varies from maximum to minimum as it passes through the vanes. Okay, and in impulse turbine the jet of water issuing from the nozzle strike the bucket fixed to the periphery of wheel. Okay, and in reaction turbine the water is guided to the moving vanes at a proper angle by guide vanes. Okay, and in impulse turbine an airtight casing is not essential. Okay, and in reaction turbine the airtight casing is very essential, and in impulse turbine the water may be admitted either over a part of the perimeter or over the whole peri of the wheel, but in reaction turbine the water must be admitted over the whole perimeter of the wheel. Okay, impulse turbine it is possible to regular the flow without loss, and in reaction turbine is there is loss when the flow is regulated. Okay, and in impulse turbine does not require a draft tube, but reaction turbines always requires a draft tube.
Impulse turbines are used for high head and reaction turbines used for low and medium heads. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इम्पल्स टर्बाइन के कुछ मतलब ये तीन जैसे उनके types है, that is Pelton, Turbo and Cross Flow. These are three types of impulse turbine, and there are some reaction turbines: propeller, Francis, Darius, fixed blade, Kaplan, tubular and Bull. These all seven are reaction turbines. So next is our impulse turbine. I'm showing a schematic diagram of impulse turbine where we can see the penstock, this wheel, दिस इज और रेगुलेटिंग सिस्टम. जब मैं हम लोगों को पेल्टन टरबाइन का जब लेक्चर लूँगी मैं उसमें आप लोगों को कम्प्लीटली पेल्टन टरबाइन आप लोगों को समझा के दूंगी. ओके, ठीक है. तो ये हमारा पेल्टन टरबाइन है. वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है थ्रू जेट ऑन एंड स्ट्राइक हो रहा है ऑन दिस ब्लेड्स. ओके, तो जो हमारे ये यहाँ पे नोजल फिटेड है, इससे क्या हो रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. velocity of water is increases. Okay, so with the help of this jet the runner will be run. Okay, हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंजेंशियली ये जो पेल्टन व्हील में जो वाटर है ये फ्लो क्या हो रहा है, टेंजेंशियली हो रहा है. एंड दिस इज अर रनर वेयर बकेट्स और वेन्स आर फिक्स्ड. ओके, तो ये हमारा इम्पल्स टर्बाइन है, उसका एग्जांपल है पेल्टन टर्बाइन. नाउ सेकेंड रिएक्शन टर्बाइन. रिएक्शन टर्बाइन में हम लोग दो टाइप के देखेंगे. फर्स्ट इज इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन. ओके, ये क्या रहता है, एक तो इनवर्ट रहता है या फिर आउटवर्ड. यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग मैंने शो की है वो है इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन की. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर जो है वो आउटवर्ड टू इनवर्ट फ्लो हो रहा है. ओके, आउटवर्ड टू इनवर्ट फ्लो हो रहा है. एंड फ्रांसिस टर्बाइन इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन. ये मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन रहता है क्योंकि यहाँ पे एक्सियली एंड रेडियली बोथ फ्लो आर, दोनों जो फ्लोज है वो इसी में होते हैं. दैट इज इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. द एग्जांपल ऑफ इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन इज फ्रांसिस टर्बाइन. This is our Kaplan turbine. This is also the example of axial flow turbine और reaction turbine. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो water हमारा जो है वो flow हो रहा है with in the direction of this shaft. Okay, जो shaft का axis है, जिस direction में axis है उसी direction में water flow हो रहा है, तो हम लोग इसको axial flow direction axial flow reaction turbine भी बोलते हैं. ठीक है, तो Kaplan turbine is one of the example of reaction turbine. ओके, और यहाँ पे जो ब्लेड्स लगी हुई है, एक तो ये मूवेबल रहेगी या फिर फिक्स्ड रहेगी. अगर मूवेबल रहती है तो हम लोग उसको प्रोपेलर टर्बाइन बोलते हैं. हियर आल्सो गाइड वेंट्स, ड्राफ्ट ट्यूब, एक्सियल इनफ्लो एंड ड्राइव शाफ्ट. यहाँ पे जो क्या होता है, जो ड्राफ्ट ट्यूब लोग कनेक्टेड रहती है वो इसीलिए रहती है कि जो प्रेशर है यहाँ पे, ये प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है. तो जब वो ड्राफ्ट ट्यूब थ्रू टेल रेस में जाएगा तो वो क्या होगा, अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये हो रहा है, ये हो गया हमारा कपलान टर्बाइन. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन बेस्ड ऑन वर्किंग मीडिया. जो हमारा मीडिया जो वाटर है या फिर गैसेस है, जिस भी मीडिया में हमारे टर्बाइंस वर्क कर रहे हैं, जो भी फ्लूइड यूज हो रहा है टर्बाइंस में, हम उसको क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन वर्किंग मीडिया. फर्स्ट इज हाइड्रोलिक टर्बाइन, जो कि वाटर की हेल्प से टर्बाइन रन होते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोलिक टर्बाइन बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्टीम जो रन हो रहे हैं उनको हम लोग स्टीम टर्बाइन बोलते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ गैस जो रन हो रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे गैस टर्बाइन. एंड फोर्थ इज और विंड टर्बाइन. विंड टर्बाइन में क्या हो रहा है कि जो हमारा एयर जो है, विंड जो है, उससे पावर डेवलप होगा, हम उसको wind turbine बोलेंगे. We can see here the hydroelectric power plant, that is hydraulic turbine. ये जो टर्बाइंस रहते हैं ये कौन से रहते हैं, हाइड्रोलिक टर्बाइंस रहते हैं जो वाटर में वर्क करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. ये जो मीडिया है ये क्या रहेगा, इसमें वाटर रहेगा इन हाइड्रोलिक टर्बाइंस में. देन विंड टर्बाइन में क्या रहती है, जो अपनी विंड रहती है वो क्या रहता है,
दैट इज और इनलेट एनर्जी। ठीक है, क्या हो रहा है, विंड पावर इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस विंड टर्बाइन in mechanical energy, then mechanical power is converted into electrical energy by with the help of generator and power interference. ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. नाउ other also there is a wind power, wind turbine, and this is a gas turbine. Yeah, with the help of gas we can produce the electrical energy or we can produce the energy, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गैस टरबाइन. ओके, तो ये हमारे जो वर्किंग जो उसका ये है, जो वर्क जिस इसमें जिसमें वर्किंग जो मीडिया है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी ये 4 टाइप्स के टरबाइन हम लोगों को मिल रहे हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन इज बेस्ड ऑन हेड, जो हाइट है अपनी, ठीक है, जो टरबाइन की हाइट रहती है, हेड रेस टू टेल रेस, उसको वो रहेगी, उस पे जो बेस्ड रहेंगे उसको हम उनको भी बोलेंगे. हियर हेड इज द एलिवेशन डिफरेंस ऑफ रिजर्वायर वाटर लेवल एंड डीएस वाटर लेवल. ओके, फर्स्ट इज हाई हेड टरबाइन. हाई हेड टरबाइन मीन्स जो अबो 250 के अबो है जिसका हेड रहेगा. ठीक है, जो पेल्टॉन टरबाइन हमारे रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत ही वो हाई हेड टरबाइंस है. ठीक है, तो वो कितने अबाउट 300 to 4000 मीटर अबो उसका हेड रहेगा. ठीक है, जो वाटर हेड रहेगा, रिजर्वायर जो रहेगा. ठीक है, एंड मीडियम हेड टरबाइंस, द रेंज ऑफ मीडियम हेड टरबाइंस इज 60 to 250 meter. The example of medium head turbine is Francis turbine. Third is our low head turbine. Low head turbine consists below 60 meter length, and the example of low head turbine is Kaplan turbine. Now the classification of turbine is based on specific heat. Turbines can be classified based on specific heat. Specific speed is defined as the speed in RPM, and geometrically similar turbine, which is identical in shape, dimensions, blade angles, and gate opening with the actual turbine working under unit head and developing unit power. Specific speed is used to compare the turbines and is denoted by NS. NS is the denotation of specific heat. The formula for specific heat is Ns equals to N under root P by H raised to power 5 by 4. See, there are the ranges of the speeds. Low specific heat, the range of low specific heat is 8.5 to 30. An example of low specific heat is Pelton turbine. Now, second is medium specific heat. The range of medium specific speed is 50 to 340. An example of medium specific speed is Francis turbine. Now, third is high specific speed. The range of high specific speed is 255 to 860, and the example of high specific speed is Kaplan turbine. Now, classification of turbine based on deposition of turbine main shaft. जो हमारे shaft रहेंगे turbines के, उस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं टर्बाइन को, जो कि रहेगा एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. शाफ्ट विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. जिस डायरेक्शन में शाफ्ट रहेगा हमारा, इट में बी हॉरिजॉन्टल और इट में बी वर्टिकल शाफ्ट. अगर हॉरिजॉन्टली शाफ्ट रहता है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टर्बाइन. एंड अगर वर्टिकल शाफ्ट रहता है तो हम उसको वर्टिकल शाफ्ट टर्बाइन बोलेंगे. हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में क्या होता है, जो रनर हमारा रहता है वो फिक्स रहता है एट हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, एंड वर्टिकल शाफ्ट में जो हमारा रनर रहेगा वो फिक्स रहेगा ऑन वर्टिकल shaft. Now classification of turbine is based on flow through the runner. Okay, first is radial flow. Water flow जब हो रहा है हमारा रनर थ्रू, तो वो किस डायरेक्शन में है, उसके बेसिस पे भी हम लोग जो हमारा टर्बाइन है उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेडियल फ्लो. रेडियल फ्लो में भी 2 टाइप्स रहते हैं, दैट इज इनवर्ट फ्लो एंड आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. ठीक है, इनवर्ट फ्लो में क्या होता है, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड. वाटर क्या हो रहा है, फ्लो आउटर टू
इनर फ्लो होता है एंड आउटवर्ड में फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो होता है. ओके, so these are two types of radial flow reaction turbine. Then axial flow reaction turbine. Axial flow reaction turbine में हो रहा है कि जो अपना वाटर फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, शाफ्ट के डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा. जिस डायरेक्शन में शाफ्ट का एक्सिस रहेगा उस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा, हम उसको बोलेंगे axial flow reaction turbine. And the example of axial flow reaction turbine is Kaplan turbine. Third is mixed flow reaction turbine. Mixed flow reaction turbine, the example of mixed flow reaction turbine is Francis turbine. इसमें क्या हो रहा है, radial flow and axial flow both are involved in mixed flow reaction turbine. ओके, क्या होगा, वाटर जो फ्लो होगा वो एक्सियली और प्लस रेडियली होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोलेंगे. उसका एग्जांपल है फ्रांसिस टर्बाइन. ओके, एंड फोर्थ इज टेंजेंशियल फ्लो. वाटर अगर रनर ब्लेड्स पे टेंजेंशियली इम्पैक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. द एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल रिएक्शन टर्बाइन इज पेल्टन टर्बाइन. Now here in this video we can see the comparison of turbine. We can see here three types of turbine. First is impulse turbine and these two are reaction turbines. We can see here this is Pelton turbine, this is our Kaplan turbine and this is our Francis turbine. These two are reaction turbines and this is our impulse turbine. हम लोग यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं हमारा, जो कि क्या हो रहा है, नोजल से फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऑन द बकेट्स और ऑन द वेन्स. और जो नोजल्स है वहाँ पे क्या रहेगी, हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रहेगी वो वेरी हाई रहेगी. ओके, और जो पेल्टन व्हील्स रहते हैं वो हमारे हाई हेड पे रहते हैं, जहाँ जिसकी रेंज रहती है अबाउट 250 मीटर. दैट मीन्स 300 to 4000 मीटर उसकी रह सकती है, हेड की जो डिस्टेंस है वो रह सकता है. एंड फ्लो रेट विल बी लो. इन इम्पल्स टर्बाइन और पेल्टन व्हील टर्बाइन फ्लो रेट विल बी low. We can see here. And second is our mixed flow reaction turbine or invert flow reaction turbine, and this is our Kaplan turbine. See here, water flow होगा जो हमारा शाफ्ट है उसके एक्सिस में. वी कैन सी हियर जो हमारे कपलान टर्बाइन रहते हैं वो क्या रहते हैं, हाई फ्लो टर्बाइंस रहते हैं. मतलब जो रेट ऑफ फ्लो रहेगा दैट विल बी मैक्सिमम, एंड ये क्या रहते हैं, लो हेड बेस्ड रहते हैं, और उसका जो हेड रहेगा वो 2 to 25 मीटर रहेगा. दिस इज अवर कपलान टर्बाइन. एंड दिस इज अवर फ्रांसिस टर्बाइन. ये मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है जहाँ पे रनर ब्लेड्स और गाइड ब्लेड्स रहेंगी. यहाँ पे जो वाटर हमारा फ्लो होगा वो दैट विल बी एक्सियल एंड रेडियल टू. ओके, दिस diagram shows the relation of head and discharge. ओके, तो यहाँ पे जो इम्पल्स टर्बाइन दिखाया है हम लोगों को, सी क्या हो रहा है, इम्पल्स टर्बाइन हमारे हाई हेड पे रहेंगे. सी वी कैन सी हियर इम्पल्स टर्बाइन हमारे हाई हीट पे लो डिस्चार्ज देंगे. हाई हेड पे रहते हैं बट लो डिस्चार्ज देते हैं. ओके, एंड जो हमारे मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है जैसे कि कपलान टर्बाइन है, सॉरी फ्रांसिस टर्बाइन है, वो क्या कर रहा है, मीडियम हेड पे मीडियम डिस्चार्ज हम लोगों को देगा. एंड थर्ड इज और कपलान टर्बाइन दैट इज एक्सियली फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. ये हम लोगों को लो हेड पे मैक्सिमम डिस्चार्ज देता है. See here in this graphical diagram we can see the relation between efficiency and speed of the turbine. Okay, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा इम्पल्स टर्बाइन है ये लो स्पीड में हाई एफिशिएंसी दे रहा है. ओके, एंड जो मिक्स फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है हमारा वो
मीडियम स्पीड में मीडियम एफिशिएंसी दे रहा है, एंड जो ये है अपना कपलान टरबाइन है वो हाई स्पीड में मीडियम एफिशिएंसी दे रहा है. See, this is graphical represented which shows the representation which shows the relation between efficiency and speed of these three turbines. Okay. See here, tangential mixed flow. I already tell you that, and this is axial flow. That is Kaplan turbine. This is our फ्रांसिस टर्बाइन एंड दिस इज अ पेल्टन टर्बाइन. तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन से वो कवर कर लिए हैं. थैंक यू.